قرآن مجید نے میرے لیے کیا کہا ہے؟ میری خواہش تھی کوئی یہ سوال مجھ سے پوچھے. عزیز صاحب ایسے ہے، سب سے پہلے تو قرآن کریم کا اگر کوئی بھی اپنے آپ کو عالم کہے نا، تو میں کہتا ہوں یہ بہت بہت ایگزاجریشن ہوگی. قرآن کریم کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، اس کا عالم بہت مشکل ہے، وہ نالج نہ ختم ہونے والا ہے. میں ہر دفعہ ایک سورت پڑھتا ہوں، ہر دفعہ کچھ نیا اس سے سیکھتا ہوں. جی تو قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے ہماری جو شروعات کی سورہ بقرہ میں، اس واقعے سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اسقال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. جی. تو فرشتوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے میں پلک جھپکنے کی دیر نہیں کرتے، پر انہوں نے یہاں پہ ایک سوال پوچھا کہ اب یہ تو زمین پر فساد مچائے گا، خون بہائے گا، آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے تو ہم ہیں. تو یہ بڑا جینون بھی ہے، فرشتوں جتنی عبادت ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم. اچھا سر، انہوں نے کیسے کہا کہ یہ فساد بنا؟ انہیں کیسے پتا تھا؟ یہ اپنے اندر ایک بہت لمبی سٹوری ہے. یہ آدم سے پہلے ہم چلے جائیں گے. یہ سٹوری پھر بہت لمبی ہو جائے گی، اس کو کسی اور دن کے لیے. یہ سوال بہت ضروری ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی یہ سوال پوچھے. مطلب وہ سوچتا ہے قرآن کریم پر کہ فرشتوں کے پاس غیب علم تو نہیں ہے نا. تو انہوں نے اللہ کچھ اب تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، ڈفرنٹ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جنات تھے، جنات کو دیکھا. پھر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جنات نہیں سر، جنات کو اور جنات کا انسان کا کمپیریزن کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا جو مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم. پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھایا. پھر فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم یہ بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک، ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر وہی جو آپ نے دیا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ نام بتا دیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام بتا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے پاس علم ہے. کیا ہوا یہاں پہ؟ یہ تو ہمیں پورا مقصد ہمیں بیان کر رہے ہیں، جیسے قرآن کریم ہمیں وہ مین پوائنٹ بتا رہا ہے، مین نقطہ بتا رہا ہے. کیا ہوا یہاں پہ؟ مجھے اس کی سمجھ آئی پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ سے. پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ کون ہے؟ وہ کینساس یونیورسٹی میں میتھس کے پروفیسر ہیں. وہ کرسچن تھے، ایتھیسٹ ہوئے، اور ان آیتوں کا ایک پورا سلسلہ ہے جس پہ وہ مسلمان ہوئے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایک کیپیبلٹی دی گئی ہے، اور وہ ہے لرننگ. کیا؟ لرننگ، سیکھنا. سیکھنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ انٹیلیجنس کی. انسان کے پاس یہ خصوصیت ہے کہ یہ لرننگ کر سکتا ہے، اس کے پاس انٹیلیجنس ہے، یہ اور چیزیں سیکھے گا. پہلا لفظ جو نازل ہوا آصف صاحب وہ کیا تھا؟ اقرا. پڑھو، سیکھو، انٹیلیجنس استعمال کرو، عقل استعمال کرو. یہ اس واقعے کا نچوڑ ہے. آپ ایک لرننگ بینگ ہے، اور اس واقعے کو آگے لے جا کے جو پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ نے بیان کیا وہ میں بیان کرتا ہوں. دوسری امپورٹنٹ چیز بتائی، ایک آپ سمجھ لیں، ایک ہے انٹیلیجنس اور لرننگ ہے، اور اس کے میں آپ کو کچھ ثبوت ایک دفعہ بتا دوں کہ کیوں ہے. پہلی بات جو قرآن کریم سے آپ نے اٹھانی ہے، ریسرچ ہے، لرننگ ہے، انٹیلیجنس ہے. میں نے آپ کو سورہ انفال کی بھی آیت بتائی 22 نمبر. بدترین جانور کس کو کہا؟ وہ گونگے بہرے جو عقل سے کام نہیں لیتے. سورہ بقرہ میں ہی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ خیر کثیر وہ ہے جن کو حکمت عطا ہو گئی. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ جب یہ قرآن کریم بیان کرتا ہے دوزخ کے حال کہ انہیں کس وجہ سے دوزخ میں ڈالا گیا، تو وہ کیا کہیں گے جواب میں آپ کو پتہ ہے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. جواب میں کہا جائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. اب یہ آپ نے اپنے اصلی گناہ کا اقرار کیا. ذرا سوچیں ناصر صاحب، گناہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ کیا وہ کیا، گناہ یہ کہا گیا کہ آپ نے عقل نہیں استعمال کی. یہ وہ میجر گناہ کہا گیا ہے. خیر کثیر سے کہا گیا ہے، جب اسے نہیں استعمال کیا اسے بدترین جانور کہا گیا ہے. یہ وہ پہلی چیز ہے جو آپ نے قرآن کریم سے اٹھانی ہے کہ آپ نے انٹیلیجنس استعمال کرنی ہے، آپ نے ریسرچ استعمال کرنی ہے. اگر آپ گونگے بہرے ہو کے اندھے ہو کے کسی کی پیروی صرف شروع کر دیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. آپ نے قرآن کریم پر تدبر کرنا ہے. میں مسجد میں کچھ دیر کے لیے بیٹھتا ہوں آصف صاحب، تو ایک حدیث بیان ہو رہی تھی کہ ایک ساتھ کا ایک لمحے کا غور و فکر کہ آصف صاحب ذرا سوچیں کہ یہ چاند اوپر ہے گرتا کیوں نہیں ہے؟ اسے تو گر جانا چاہیے، اوپر جو پھینکتے گر جاتا ہے. یہ سورج گرتا کیوں نہیں ہے؟ یہ میں کیسے بڑا ہوتا جا رہا ہوں دن بدن؟ یہ میں درخت ایک سیڈ رکھتا ہوں، بیچ رکھتا ہوں، اس میں سے 1000 کلو کا درخت نکل آتا ہے، مٹی وہی رہتی ہے، جگہ وہی رہتی ہے، کہاں سے آئے 1000 کلو؟ ایک لمحے کا جب میں غور و فکر کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ 60 سال کی عبادت کا. ایک جگہ ہے 80 سال کی عبادت کا، صرف سوچنے پر، صرف یہ غور و فکر کیا آپ نے. اتنا انٹیلیجنس کی امپورٹنس ہے، اتنا ریسرچ. ہم پوری دنیا میں سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ نہیں، اپنے مین پوائنٹ سے جتنے سائنٹسٹ کوٹ کیے مجھے سب بول رہے ہیں، پر ان کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس کی بنیاد رکھی ابن ہاشم نے، ابن سینا نے، الخرزامی نے. ہمارے ساتھ 1000 سال پہلے کیا ہوا ذرا سوچیں نا. ہمیں کیوں اس ٹریک سے ہٹایا گیا؟ قرآن کریم کا ڈائریکٹ حکم ہے، اور یہ استعمال کرنا کہاں کرنی ہے یہ پتا ہے آپ کو آصف صاحب؟ اللہ تعالیٰ بڑا صاف بیان کرتے ان فی خلق السماوات والارض. سورہ بقرہ کی 164 نمبر آیت ہے آصف صاحب، وہ کہتی ہے بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں، وہ کشتیاں جو پانی میں تمہارے فائدے کے لیے چلتی ہیں، وہ پانی جو ہم نے آسمان سے نازل کیا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، وہ تمام چرند پرند جو اس زمین پر ہیں، یہ ہوائیں، یہ بادل، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اس آسمان اور زمین کی پیدائش پر سوچنا تھا، ہم نے سوچا نہیں. رات اور دن کے بدلنے پر
सोचना था, पानी पर सोचना था, चरिंद परिंद पर, हवाओं पर, बादलों पर, यानी इस पूरी कायनात पर सोचना था। ये हुक्म है। सूरह बकरा 164, मैं जो ये सारी बातें कोट कर रहा हूं, कुरान करीम कोट कर रहा हूं ना, सूरह बकरा की 164 नंबर आयत, जो भी सुन रहा है खोले देखे, ये हुक्म है ना अल्लाह ताला का। कुरान अल्लाह ताला की किताब है, हमने फॉलो किया नहीं किया ना, तो मतलब हम अपने डी ट्रैक हो गए ना उससे। आपने मुझे कहा कि कुछ चीजें बता दे जो कुरान करीम से उठाए, तो पहली चीज जो आपने उठानी है वो ये है अकल, अकल का इस्तेमाल करना, रिसर्च, सोचना समझना, अल्लाह की कायनात पर गौर फिक्र करना, इतना बड़ा। दूसरी चीज, और ये वो सूरह बकरा के मैं पहले रुकू में ही आपको समझा रहा था, पहला ये पॉइंट। दूसरा ये पॉइंट आया कि मना किया गया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कि उस दरख्त के करीब मत जाना, और वो गए उसके करीब। इससे हमें क्या, ये क्यों ये वाकया बार बार बयान हुआ हमारे लिए, कि उससे हमें दूसरा सबक मिलता है कुरान करीम का, और वो क्या है, वो ये है कि अल्लाह ताला का हुक्म आपके पास आएगा, मगर आपके पास फ्री विल है, आपके पास इख्तियार होगा। आप चाहे तो उसे माने और आप चाहे तो उसे ना माने। आपको इंटेलिजेंस दी गई और आपको एक और साथ चीज दी गई, फ्री विल। इंटेलिजेंस है आपके पास, आपकी मर्जी दिन रात स्क्रोलिंग पे लगा के बेकार में उसे जाया कर दें, या उसे इस अल्लाह की कायनात को समझने पर लगा दें, है ना आपके पास फ्री विल। तो ये आपके पास इख्तियार भी दे दिया गया, दो चीजें दे दी गई आपको, इंटेलिजेंस भी दिया गया और फ्री विल भी दी गई। आपकी मर्जी है, एंजॉय करें सारी लाइफ जिंदगी को, फ्री विल है आपके पास। पर यह है कि जो आपको फिर एसेट दिया गया उसके बारे में पूछा जाएगा, और ये भी है कि आप इसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस कायनात पर सोचें, समझें। दो चीजें आपको समझ आ गई यहां से, अब इससे थोड़ा सा आगे, इन दो के बाद तीसरी चीज को समझें। आपने कायनात पर सोचना शुरू किया और आपके पास फ्री विल भी थी, आपने वो फ्री विल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस कायनात को समझने पर लगा दी। तो जब आप कायनात को समझते हैं और हर चीज के एंड पे जाते हैं, तो आपको एक चीज मिलती है कि कोई है जो इस टाइम एंड स्पेस से बाहर है, जिसने इसे क्रिएट किया है। जाहिर कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। ये हर साइंसदान यहां तक पहुंचेगा, मुस्लिम होगा नॉन मुस्लिम होगा, वो जब इस कायनात पर सोचेगा, ये सोफा किससे बना, लकड़ी से बना, लकड़ी किससे बना, कार्बन से बना, कार्बन किससे बना, स्टार से बना, स्टार्स किससे बने, वो उस इनिशियल हाइड्रोजन से बना, हाइड्रोजन किससे बना, वो बिग बैंग से बना, बिग बैंग किससे बना, वो सिंगुलैरिटी से बना, वो सिंगुलैरिटी कहां से आई। स्टीफन हॉकिंग कहता है कि मुझे नहीं पता, एथियस्ट कहता है। साइंस कहती है कि 10⁻⁻43 सेकंड से पहले क्या हुआ हम नहीं जानते, हमें नहीं पता वो कौन था, क्या था, कहां से आया ये, पर कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। ये इतनी परफेक्ट यूनिवर्स जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये जर्रा बराबर भी डिफरेंट होती तो पूरी कायनात ना होती। किसने इसे इतना परफेक्ट रखा हुआ है? हम क्यों, हमारी जमीन क्यों गोल्डी लॉक जोन में है कि ना धूप के इतना करीब है कि हम जल जाए, ना इतना दूर है कि हम बर्फ हो जाएं? क्यों हमारे पास जुपिटर है जो हर एस्ट्रॉयड हम पर आता है उससे हमें बचा लेता है? क्यों हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है, हीलियोस्फीयर है, मैग्नेटोस्फीयर है, लोकल बबल में हम लोग, किसने हमें रखा हुआ है? इतना परफेक्ट फाइन ट्यून निजाम किसने बनाया है? सिंगुलैरिटी कहां से आई है? कहां से सब कुछ शुरू हुआ? मैटर तो, ये लकड़ी तो मैटर से बना, एटम से बना, एटम नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग से हम लिविंग बीइंग कैसे बन गए जो बैठकर ये सोचता है कि ये सब कैसे बना? ये कॉन्शियसनेस, ये सोच कहां से आई यासिर साहब? जब आप इस पर सोचना शुरू करेंगे तो आप उस पे जो पहुंचेंगे जिसे एरिस्टोटल प्राइम मूवर कहता है, जिसे फर्स्ट मूवर कहता है, कि कोई है जिसने सब शुरू किया है। तो आप पहुंचेंगे एक जात तक, और वो आपसे मांगता क्या है? इस पे आपकी थर्ड चीज आएगी। वो आपसे क्या मांगता है यासिर साहब, कभी सोचा है? वाह 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 वाह। फिर हम ये सोचते हैं कि वो हमसे मांगता क्या है। अब मैं आपकी बात से रिलेट कर पा रहा हूं कि वो क्यों हमें हुक्म देता है कि रिसर्च करो, क्योंकि जैसे जैसे हम रिसर्च करते जाएंगे हम अल्लाह के करीब होते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा वो आलमीन का रब, कितना बड़ा है, जिसने एक सिंगुलैरिटी से, एंट्रोपी तो ये कहती है कि धमाका होगा तो सब कुछ खराब होता जाएगा। एंट्रोपी का उसूल ये है ना कि ये रूम सजा हुआ है तो ये वक्त के साथ खराब होता जाएगा, इसका डिसऑर्डर होता जाएगा, ये सेट नहीं होगा और डिसऑर्डर होता जाएगा इसमें। पर एक धमाके से हम जैसे इंसान बन रहे हैं जो सोच रहा है, और ये सारी चीजें बन रही हैं। कैसे तरद्दुद के बाद मैं और आप जो बने हैं, इतनी सब चीजों के बाद होने के बाद जो हम यहाँ बैठे हैं, उसके अंदर फिर ख्याल उसी की तलाश का है। हाँ, हम कुछ तो ढूंढ रहे हैं। हाँ, अब मैं इस पे एक और बहुत जबरदस्त बात बताता हूँ। थॉट्स कैसे बनते हैं? कॉन्शियसनेस, आपके अंदर जो एहसास है मैं हूं, ये कहाँ बनते हैं हमारे जिस्म में? हम तो एटम से बने ना, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, और एटम वो जो है वो क्वार्क से बने। उसमें ये एहसास, ये सोच कहां से आ रही है? नहीं पता साइंस को। न्यूरॉन्स तो वेट न्यूरॉन्स है, वो ये सोच थॉट कैसे बनाते हैं, ये कहां से आ रही है? नहीं पता हमें। यही तो कर नहीं पा रहा है एआई भी, नहीं समझ पा रहा उसे, वो फीलिंग नहीं कर पा रहा। वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, वो फील नहीं कर सकता चीजों को। हमारे पास मेटा कॉग्निशन है आसिफ साहब, उनके पास नहीं है। पर मैं फिर अपने ट्रैक पे वापस आता हूं। मैं तीसरी चीज आपको बताने लगा था, पर वो पूरी हमने जर्नी की, कायनात को समझा, तो हमें पहुंचे कि कोई है जिसने ये बनाया है। और हर अनबायस्ड साइंसदान जो है, हर अनबायस्ड, वो इसी कंक्लूजन पर पहुंचा है कि कोई है। अब मैं कुरान करीम की तरफ आता हूं। जब आपने पहचान लिया कि रब है,
उसने मुझे इंटेलिजेंस दी है, उसने मुझे फ्री विल दी है, वो मुझसे चाहता क्या है? आपको पता है सूरह माउन क्या कहती है? आया तुमने उस शख्स को देखा है जिसने दीन को झुठला दिया है, दीन का इनकार कर दिया है? वो कौन है ऐसा? जो यतीम को धक्के देता है, जो मिस्कीन को खाना खिलाने की तलकीन नहीं करता। तो तबाही है ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं और जरूरत की चीज भी मांगने पर नहीं देते। किसका एहसास हो रहा है यहाँ पे? यतीम का। किसका एहसास हो रहा है यहाँ पे? मिस्कीन का। किसका एहसास हो रहा है यहाँ पे? जरूरतमंद का। यानी हर वो शख्स जो जरूरत में है, उसकी जान, हर इंसान का जान का, माल की, इज्जत का ख्याल रखना। आपको पता है सूरह बकरा में एक आयत है, आयतुल बिर, नेकी की आयत। तो क्या कहती है? वो कहती है कि लैसल बिर्रा, नेकी सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना चेहरा मशरिक और मगरिब की तरफ मोड़ ले, क्योंकि ये उस टाइम आई थी जब किबला अव्वल से हम खाने काबा की तरफ शिफ्ट हुआ था। नेकी ये है कि आप ईमान रहे अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के पैगम्बरों पर, और वो माल जो आपको बहुत प्यारा है उसे खर्च करें पहले अपने कराबतदारों पर, रिश्तेदारों पर, फैमिली पर, बच्चों पर, बीवी पर, बहन भाइयों पर, माँ बाप पर, उन पर खर्च करें माल जो आपको प्यारा है। वातल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, फिर यतीमों पर, कम्युनिटी गुडनेस, यतीमों पर, फिर मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, वो जो कैद में है। फिर उसके बाद कहा कि आप नमाज पढ़ें और ज़कात। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सूरह बलद ने कहा कि हमने आपको 2 घाटियों का रास्ता दिखाया, पर आपने मुश्किल घाटी का रास्ता नहीं चुना। वो क्या है? फिर सेम बातें, यतीम, मिस्कीन, किसी की मदद करना, सब्र करना, रहम करना। क्यों आसिफ साहब? क्योंकि आपके अंदर एक लड़ाई चल रही होती है आसिफ साहब। एक आपका नफ्स है जो सब कुछ अपने लिए चाहता है, एक आपके अंदर वो रूहानी ताकत है जो आपको कहता है कि नहीं अल्लाह ताला का हुक्म माने। ये हमेशा लड़ाई चल रही होती है। आप दूसरों की मदद तभी कर पाते हैं जब आप अंदर की जंग जीत जाते हैं। अल्लाह ताला आपसे ये चाहता है कि अब अल्लाह ताला को हमारी इबादत की क्या जरूरत? अल्लाह ताला तो ये चाहता है कि अपने आप को और आपके आसपास जितने लोग हैं उनकी जान को, माल को, इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचाना। अल्लाह ताला कहते हैं कि शरीयत मैंने इसलिए उतारी है क्योंकि तुम कमजोर हो और तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूंगा। तुम अगर ये ना करूं तो तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। जिस जिस काम से रोका है उससे इंसान को नुकसान होता है। साइंस या उस पर पहुंची है या पहुंचने वाली है। जिस जिस काम से रोका है उससे या किसी और को नुकसान होता है, किसी और की जान को नुकसान। अल्लाह ताला इतनी बड़ी, उसे हमारी क्या जरूरत? नहीं जरूरत। आप तो नमाज तो हमें पढ़ने का हुक्म ही नहीं, हमें तो कायम करने का हुक्म है। क्योंकि आपकी जो असलियत है उससे आप किसी वक्त के लिए कनेक्ट होते हैं। जैसे कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट होता है तो वायरस सारा उससे साफ हो जाता है। तो ये जितना निजाम बनाया है ना, चाहे रोजा हो चाहे हज हो, उसकी हकीकत को आप समझेंगे तो आपको पता होगा ये तो सारा मेरे फायदे के लिए बताया गया है। मैं ही पागल था जो नहीं समझ पाया इनको। तो तीसरी चीज आपको क्या कहा? अपनी, लोगों की जान, माल, इज्जत, जरूरतमंदों की, यतीमों की, मिस्किनों की, उसका ख्याल रखना। क्या मांग रहा है हमसे अल्लाह ताला? क्या ये आसिफ साहब ये वो चीज नहीं है जो आमतौर पर भी इंसान को करनी चाहिए? करनी चाहिए। मेरा ख्याल है मुसलमान ना भी हो तो करनी चाहिए। करनी चाहिए। बुनियादी फितरत की चीजें हैं और करते हैं लोग, अच्छे लोग करते हैं। तो जब आपने इस आसमान और जमीन को स्टडी किया और पहचान लिया का रब है, फिर उसकी इताअत करनी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको जो भी हुक्म देगा वो आपकी भलाई के लिए होगा। अल्लाह ताला को हमारी क्या जरूरत है? हाँ, ये है कि मेरे पास इल्म कम है, मुझे वो अंदाजा नहीं होता कि ये क्यों मेरे फायदे में, मुझे लगता है कि ये मेरे नुकसान में। वो मेरे फायदे में होती है क्योंकि परफेक्ट नॉलेज किसके पास है? वो अल्लाह ताला के पास है। उसके लिए टाइम ये नहीं है कि उसे ये नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं होना, मुझे नहीं पता है। तो फिर आपने उसकी अनकंडीशनल इताअत करनी है। आपके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है, आप पहचान के कोई रब है, अनकंडीशनल इताअत। जबरदस्त। आपने इतना खूबसूरत बयान किया है ना कुरान को कि मकसद समझ आ गया कि हमने रिसर्च क्यों करनी है। क्योंकि हम रिसर्च करेंगे तो हम आखिर में उस मालिक कायनात तक पहुंचेंगे जिससे हम बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है। तो फिर हमें पता चलेगा कि हम उसकी बड़ाई को भी जानेंगे और फिर ये फिर हम सच में कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब ये लफ्ज अदा होंगे तो दिल से तारीफ निकलेगी। फिर वो पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्या अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं अगर मैं से, कभी ए हकीकत मुंतजिर तू नजर आ लिबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरे जबिए न्यास में। यानी वो हकीकत मुझे नजर आए तो मेरे सजदे टपके, दिल से टपके। वाह 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 वाह। सोचे ना जरा, वो मजा आएगा फिर उस सजदे का। क्या बात।